بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصے سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی، اور آج کی ویڈیو کا صرف و صرف میرا مقصد یہ ہے کہ بہت سے سوالات جمع ہو گئے تھے اور ان کا جواب دینا بہت ضروری تھا، تو میں ان کا جواب دینے لگا ہوں۔ دیکھیں، میری ویڈیو میں آپ کو مسلسل ایک سایہ نظر آ رہا ہوگا۔ یہ سایہ کیا ہے اور یہ اس سایہ کا مقصد کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سایہ وہ سایہ ہے جو خوف کا سایہ ہے، جو انسانیت کے دلوں میں خوف بٹھایا جاتا ہے، یہ وہ خوف کا سایہ ہے۔ تو میری اس ویڈیو کا مقصد صرف و صرف بہت سی باتوں کا جواب دینا ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں پاکستان میں 97% مسلمان رہتے ہیں اور ہم مسلمانوں کا ملک ہیں۔ تو ہمارے بہت سے میرے اپنے کزن جو کہ پاکستانی فوج میں کام کرتے ہیں اور بہت ہی خفیہ اداروں میں کام بھی کرتے ہیں، ان میں سے کوئی ڈیوٹیز دیتے ہیں، کوئی بارڈرز پہ ڈیوٹیز دیتے ہیں۔ تو ان میں سے کئی کزنز مجھے رابطہ کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ بھائی میری فیملیز کو کہتے ہیں اس بچے کو یہاں نہ بلانا کیونکہ یہاں اس کو کوئی اٹھا لے گا۔ تو میں نے کہا کیوں بھائی، کیوں اٹھا لیں؟ کہتے ہیں کیونکہ ان کا موقف جو ہے، جو ان کی اوپینینز ہے، وہ فوج کے خلاف۔ تو مجھے وہاں سے یہ سایہ جو 72 سال سے، شاید اس سے بھی زیادہ سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، پاکستانی قوم کے دلوں میں ایک خوف کا کاروبار بٹھایا گیا ہے کہ کیا ہے جی کہ انڈیا میں کھا جائے گا، ہمیں اسرائیل کھا جائے گا، پھر کشمیر کے نام پہ ایک خوف بٹھایا ہوا ہے جی، پھر کہتے ہیں افغانستان سے کے نام پہ۔ تو یہ ایک خوف کا ایک وار اکانومی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ بھی کسی نہ کسی کا کاروبار ہوتا ہے، دھندا ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، تو اس کو چلاتے رہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو مسلمانوں کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ خوف کا سایہ بہت پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اولاد امام حسین۔ تو میں آپ سے صرف کویسچن کرتا ہوں کہ امام حسین کیا یزید کی بیعت کرنا نہیں کر سکتے تھے؟ کر لیتے نا بھائی۔ یزید کوئی کافر تھا؟ یزید کافر تو نہیں تھا، تو یزید کی بیعت کر لیتے۔ لیکن ان کو معلوم تھا، کیوں نہیں کی؟ ان کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ یزید کی آج اگر میں نے بیعت کر دی تو یہ یزید ہمیشہ سے میری قوم، میری نسل کے لوگوں کے دلوں میں خوف کا کاروبار اور یہ سیڈ بو دے گا ہمیشہ کے۔ تو بھائی صاحب، بات اتنی سی ہے کہ کیا یہی ہماری فوج کشمیر کے نام پہ ہمیں الو نہیں بناتی رہی 72 سال؟ تو آخر میں کیا ہوا؟ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم PSL کھیلیں گے، ہم وہاں پر کشمیر لیگ کھیلیں گے، گانے۔ فوج کا کام کیا گانے بجانا ہوتا ہے، نغمے سنانا ہوتا ہے؟ یا فوج کا کیا کام ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم سیاست میں مداخلت ہم نہیں کرتے، اور تو بھائی وہ آپ کا اپنا اوتھ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے میں نہیں کروں گا مداخلت، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس طرح کے کوئی اوپینینز کوئی دیتا ہے تو بھائی سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سچ بولتے ہوئے پھر آپ اس خوف کی کیوں پرواہ کرتے ہیں؟ کیا وہ احمد فراز نہیں تھا جب وہاں 90,000 یہ دشمن کے ہاتھ میں پاکستانی فوج وہاں پر بندوقیں رکھ کر وہاں قید ہو کے آگے، کیا ہم ان کو چھڑا کے نہیں لائے یار؟ ہم وہاں سے چھڑا کے لائیں؟ کیا احمد فراز نے نہیں کہا کہ پیشہ ور قاتل ہو تم سپاہی نہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہی بات آج ہم لوگ کر رہے ہیں، وہی ساری عوام کر رہی ہے، وہی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو ہم تنخواہ اس چیز کی نہیں دیتے، پاپا جونز کے پیزے بیچنے کی نہیں دیتے، منشیات کی سمگلنگ کی نہیں دیتے، ہم اپنے لوگوں کو اغوا کرنے کی دھمکیاں دینے کی اس تنخواہ نہیں دیتے آپ کو۔ تو اگر 97% لوگ مسلمان رہتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں، یا تو آپ حسین کو غلط کہہ دیں، احمد فراز کو قاتل کہہ دیں،
फिर आप यही कहें, आप कहें ऊदबाई भी जो है वो दुश्मनों के एजेंडे पे है। वो आप देखें एक लंबूतरे की शक्ल का कोई इंसान बैठा होता है, मुझे नहीं पता उसकी तालीम क्या होगी क्या नहीं होगी, कोई कहते हैं कोई जर्नल है, कोई पता नहीं क्या नाम है उसका, जहन से भूल गया, बहरहाल जो भी है। तो आप उस शख्स की शक्ल देखें, पता नहीं तालीम कितनी होगी, कभी स्कूल गया होगा, एफए पढ़ा होगा, बहुत हुआ, ठीक है, कहें यार एक बंदा पढ़ा लिखा है, 47 साल से आपकी पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, तो आप उसको कहते हो कि ये जो है दुश्मन मुल्क का बंदा है। फिर आप हमें डराते हो, और जी आप आओ पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? भाई अगर हमने आना होगा तो कि मतलब आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप कोई दहशतगर्द हैं, क्या हमारी फौज कोई गुंडागर्द है? यार मैं तो जितनों से मिला हूँ, मैं तो कई जनरल साहिबान से भी मिला हूँ, हमारे अपनी क्लास फेलो दोस्त कर्नल्स भी होंगे, उससे ऊपर भी होंगे, ठीक है, और हमारी ख़ानदान में सैकड़ों लोग फौज में काम कर रहे हैं। तो जब हमारे बहन भाई सिर्फ जब इतनी बात करते हैं, कहते हैं कि जी आप मुहब्बे वतन, भाई हम मुहब्बे वतन हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ हैं, हम अपनी फ़ौज को ऑन करते हैं, लेकिन फ़ौज लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि फ़ौज कोई आसमान से उतरी है, ठीक है, फ़ौज हम लोग ही बनाते हैं, वो हमारी ही फ़ौज है, ठीक है। लेकिन हम जो बातें करते हैं, हम वो कहते हैं कि उनके कारोबार, उनके बिजनेसेस, जो उनके और धंधे हैं, काले धंधे हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो उसमें कौन सी बात है, ठीक है, इसमें कौन सी यार रॉकेट साइंस है, कोई ऐसी चीज़ है जो, तो मतलब कोई गुंडागर्द तो फौज नहीं है। तो फिर एक हमारे भाई ने, मैं इसमें डिटेल में, ये मेरी लॉन्गेस्ट वीडियो है, तो भाई एक हमारे हैं जो आईएसआई में काम करते हैं, मतलब हमारी सीक्रेट एजेंसी है, माशाल्लाह हमें उन पर प्राउड है। वो रोज़ हमें तस्वीरें भेजते हैं, कहते हैं अपनी फौज से मोहब्बत करो। आगे उन्होंने तस्वीर लगाई हुई थी बाजवे की, मतलब बाजवा साहब हमारे जनरल हैं, हमें उनसे कोई ज़ाती इख्तलाफ तो नहीं है। हम ये कहते हैं कि भाई ये गलत है, ये चीज़ ही सिरे से गलत है। आप पाकिस्तानी एक गरीब कौम के लिए सारी कोई सेनेट बैठेगी, सारे असेंबली बैठेगी एक बंदे की एक्सटेंशन के लिए, आपने लाखों करोड़ों रुपए उस इजलासों पे खर्च किए होंगे, तो क्या आप उस शख्स से ये नहीं पूछ सकते कि भाई साहब आप एक अफसर तैयार ना कर सके? अब दो चार अफसर आप कहते हो आप नहीं होंगे तो ये फौज नहीं चलेगी। भाई फौज इज अ नेशनल इंस्टीट्यूट दैट बिलोंग्स टू पीपल ऑफ पाकिस्तान, दैट बिलोंग्स टू अस, ओके। सो दैट इज नॉट अ बाजवाज के घर, बाजवा साहब की कोई जाती कंपनी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ना ही पापा जोन्स बाजवा साहब की कोई है। तो अगर आप मुझे बताएं कि किसी सिविलियंस पर इस नौयत के इल्ज़ाम होते हैं, तो क्या हम तो अपने इंस्टीट्यूट्स को बेहतर देखना चाहते हैं ना। हम चाहते हैं कि जब उनका नाम आया है तो अभी तक वो बार इसके पीछे क्यों नहीं, वो दनदनाते क्यों फिर रहे हैं। तो हम सबके हक में बात करते हैं, इवन फौज के भी हम बात करते हैं कि देखें किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि वो किसी को भी अपने घरों से बाहर निकालने की धमकी दे, मुल्क बदर करने की धमकी दे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, इवन परवेज़ मुशर्रफ। भाई अगर उन्होंने कोई बुराई की है, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अगर कोई उन्होंने कानून शिकनी की है, तो उनको वापस बुला के उनका ट्रायल करो, ठीक है। इसी तरह अगर बाजवा साहब हैं तो बाजवा साहब का भी ट्रायल करें। वो बाहर क्यों घूम रहे हैं भाई, वो क्यों नहीं वो किसी अदालत में है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट ताकतवर हो, और इतने ताकतवर हों कि वो सज़ा और जज़ा का सिस्टम खुद बताए ना हमें। अब आजकल एक नई कहानी चल रही है कि जी हमारे 100 कितने बच्चे शहीद हुए थे, और अब क्या बात कर रहे हैं कि उसमें फौज के अपने लोग मुलव्विस थे, और कुछ लोग अंदर से जी मुलव्विस थे, और वो उन्होंने बंदे भगा दिए। अब मुझे ये बताएं कि ये एक मेरे सामने किताब पढ़ी है जिसको हम पूरे कहते हैं कि ये जी इसके खिलाफ कानून सुन्नत के खिलाफ कोई कानून पास नहीं होगा। तो ये किताब क्या कहती है? ये किताब ये कहती है कि जो लोग आपको पर जुल्म करें, जो लोग आपके मुल्क को तोड़ें, जो लोग
नाजायज़, नाहक, वो कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ कि उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब हों, कोई भी हो, हमारा फौजी भाई हो या सिविलियंस हो, उनको ज़बरदस्ती इस तरह की धमकियाँ दें या उनको वाकई में मुल्क से बदर ज़बरदस्ती 10-10 साल के लिए जलावतन कर दें, 7 साल के लिए, तो उनके खिलाफ आप कभी भी ढीले नहीं पड़ोगे, उनके खिलाफ आप जद्दोजहद जारी रखोगे, जंग करोगे। ये इस किताब का हुक्म है, ठीक है? ये किताब ये कहती है कि जी नहीं, आपने खड़े होना है। और यही इसी चीज़ की प्रैक्टिस जो की थी वो हज़रत इमाम हुसैन ने करके इस्लाम को ज़िंदा किया था। तो अब ये जो है सिलसिला, अब आप या तो वो लंबे मुंह वाले भाइयों की बात सुने और इन लोगों की बात सुन लें, कहें कि हम नहीं होंगे तो बस यूं हो जाएगा दुश्मन। और भाई अगर आपको इंडिया से इतना ही डर लगता है तो आप फौज में जाते ही क्यों हो यार? हम इंडिया को खुद देख लेंगे, इंडिया की क्या मजाल है, ठीक है? और पता नहीं क्यों ये हमारे पंजाबी भाइयों को डर लगता है, हम पश्तूनों को डराते हैं कि वहाँ से आ जाएगा यार। हम तो मतलब आप 200 साल की हिस्ट्री पढ़ लो, हम मतलब क्या है, इंडिया में क्या क्या उखाड़ लेगा भाई, ठीक है? तो आपको इतना डर लगता है तो आप फौज में भर्ती क्यों होते हो, ठीक है? तो आप देखें ना कितनी बुरा लगता है कि एक पड़ोसी मुल्क का एक छोटा मोटा क्या है वो, गौरव है क्या है, वो आके कहता है हमें, वो हमें कहता है कि पैम्पर भेजूँ तुम्हारी फ़ौज के लिए, और भाई हम नहीं आ रहे, आपको किसने कहा है कि हम आप पे हमला कर रहे हैं? तो ये जो है ना, मेरे ख्याल में कश्मीर का चूरन भी ख़त्म हो गया है। तो अब ये हुबलवतनी का चूरन और पता नहीं और क्या, मतलब यार फॉर गॉड सेक। एनीवे, अल्लाह ताला हिदायत दे। और मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ उन सब बातों का जवाब देना और कहना है कि भाई जो हम बात करते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं। वो आप बोलें पिंडी में भी खड़े होके करेंगे, इस्लामाबाद में भी करेंगे, कराची में भी करेंगे, कोटा में भी करेंगे, हर जगह करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पाइंदाबाद, मेरा देश जिंदाबाद।